Welcome to the first chapter of class 9 biology, that is the fundamental unit of life, the cell. Before studying the chapter the cell, we should know why we need to study. क्यों हम लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा? Because cell makes the foundation of biology. Without cell we cannot explore biology. So we'll study about cell in this video. Myself Bishwet Ghoshal, and I will help you to explore the world of cell. All of you have seen that a building is made by putting thousands of bricks together. Same as each and every living organisms in this world is made up of thousands of cells. Like our body is made up of trillions of cells. If you talk about a unicellular organism like amoeba or a multicellular organism like human being, all of our body is made up of cells. So cells are the basic structural unit of our life. Okay, each and every functions of our organs inside us, okay, are the resultant or the summation of the functions of the cells by which our body is made up of. If we talk about our stomach help us in digestion, but stomach is made up of what? Stomach is made up of several tissues, and those tissues are made up of cells. So that's why cells are known as the structural and functional units. So a cell is defined as the smallest basic unit of life that is responsible for all of life's processes. Because यानी कि life process means nutrition, respiration, reproduction, excretion, okay, growth. So each and every life process, the activities of life depending on your cells. So cells are the structural and functional unit of life. Structural unit बिकॉज एक बिल्डिंग अगर बनाना है तो ब्रिक्स को, ईटा को जैसे जोड़ेंगे बिल्डिंग का शेप और साइज वैसा ही होगा. तो हम लोगों का बॉडी का शेप और साइज जो है उस सेल के ऊपर ही डिपेंडेंट है. दैट इज वाई स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट. प्रीवियसली आई सेड each and every function of our life depending upon our cells. Now I'll talk about the discovery of cell. Cell was discovered by an English scientist named Robert Hooke. Actually, he was a physicist when he was observing a slice of cork. Cork क्या होता है? जो प्लांट जो होता है, पेड़ जो होता है, उसका बाहरी जो खाल होता है उसको कॉर्क कहते हैं. तो जो कॉर्क ऑब्जर्व कर रहे थे अपना बनाया हुआ एक जुगाड़ी माइक्रोस्कोप जिसको कहा जाता है क्रूड माइक्रोस्कोप. सो ऑन 1665 he discovered cell, Robert Hooke. That is why he is known as father of cytology or cell biology. So here we got a new term, that is cell biology or cytology. It is study of cell. सेल बायोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग सेल के बारे में स्टडी करते हैं. सो रॉबर्ट हुक जब कॉर्क का स्लाइस को अपना क्रूड माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे थे, तब उन्होंने हनीकॉम्ब यानी कि मधुमक्खी का छत्ता में जो मधुमक्खी का जो घर होता है उसका जैसा कुछ स्ट्रक्चर उन्होंने ऑब्जर्व किए थे. सेल का मतलब होता है चेम्बर यानी कि एक घर, और उन्होंने अपना जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने माइक्रोग्राफिया बोल के उन्होंने अपना जो बुक है उसमें लिख के गए थे. सेल कैनॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आइज. खुले आँख से हम लोग सेल को नहीं देख सकते. फॉर दैट वी नीड ए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट दैट इज माइक्रोस्कोप. नाउ विल टॉक अबाउट द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप. Microscope was discovered by Anton von Leeuwenhoek. एंटन वन ल्यूवेनहॉक ने अपना घर के बगल में एक छोटा सा तालाब था, उसमें उसका जो पानी है उसका पानी को अपना बना हुआ छोटा सा सिंपल माइक्रोस्कोप से जो फोटो में देख रहे हो इसे ऑब्जर्व कर रहे थे, और तब उन्होंने पहली बार के लिए लिविंग सेल, लाइफ सेल और कुछ बैक्टीरियाज को ऑब्जर्व किए थे. दैट इज वाई ही इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी एज वेल एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. यानी कि माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था. हियर वी कैन सी अनदर पिक्चर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, जो कि हम लोग जनरली लैब में यूज़ करते हैं ऑब्जर्व करने के लिए सेल को. यहाँ पे एक सैंपल भी दिया हुआ है, ऑनियन पिल यानी कि प्याज का जो छिलका होता है उसका सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो माइक्रोस्कोप में कैसा दिखने में लगेगा. नाउ विल टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट बिहाइंड द सेल एंड बिहाइंड द डिस्कवरी. अगर हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये सारे साइंटिस्ट के नाम लिए बिना हम लोग शुरू नहीं कर सकते हैं. रॉबर्ट हुक 1665 he discovered cell. Leeuwenhoek in 1674 he discovered bacteria. Robert Brown in 1831 he discovered nucleus, the CPU or the brain of cell. Dujardin
He discovered protoplasm. Later on, it was named by Purkinje. Camillo Golgi, the discoverer of Golgi body or Golgi complex. Altman and Benda, they discovered mitochondria, the powerhouse of cell. सेल का पावर हाउस यानी कि सेल के लिए एटीपी या एनर्जी बनाता है. नॉल एंड रुस्का, दे वर द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिससे हम लोग 2.5 लाख से 4 लाख गुना बड़ा कर जूम करके कोई सैंपल को हम लोग देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में. लास्टली, द सेल थ्योरी was given by two German biologists Schleiden and Schwann. Later on it was improved by Rudolf Virchow. Now look at cell theory, which was given by Schleiden and Schwann. So what they said in cell theory, all organisms are composed of one or more cells. Unicellular organism like amoeba का जो बॉडी है वो एक ही सेल से बना होता है, और ह्यूमन बींग हम लोगों का बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना होता है. द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल लिविंग थिंग्स. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ में जो प्रिवेल करते हैं सब का बॉडी सेल से बना होता है. एंड लैटर ऑन अ साइंटिस्ट नेम्ड रशियन साइंटिस्ट रुडलॉफ विर्चोव, ही एडेड ओमनी सेलुला ई सेलुला. इसका मतलब होता है ऑल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल. यानी कि अर्थ में आज जो सेल देख पा रहे हैं वो पहले कहीं ना कोई मतलब उसका जो मदर सेल है उसका डिवीजन का रिजल्ट है. ओके, सो याद रखना ओमनी सेलुला इज सेलुला वाज गिवन बाय विर्चोव. नाउ सेल थ्योरी का कुछ एक्सेप्शन लाइक वायरस, दे आर नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग. वो उसको हम लोग सेल नहीं मानते हैं, वो भी एक लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का बीच का कोई चीज़ है. ओके, सेल विदाउट न्यूक्लियस, जैसे कि हम लोगों का जो मैच्योर आरबीसी होता है उसमें वो यूनिक्लियोटेड होता है, उसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है. जैसे कि हम लोग का मसल सेल, उसके पास एक से अधिक न्यूक्लियस होता है, उसको सिंसिटियम कहा जाता है. सो दिस आर सम एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी. द वर्ल्ड इज हाईली डाइवर्सिफाइड. देयर आर थाउजेंड्स, सैकड़ों प्रजाति होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, और सबका शेप साइज अलग है, सबका दिखावट अलग है, सबका बनावट अलग है, सबका बॉडी में अलग अलग सिस्टम ऑर्गन्स होता है. सोचो तो जो अलग अलग सेल्स होगा उसका शेप और साइज में कितना अंतर होगा. ओके, सो देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स आर देयर. लाइक द शेप ऑफ अ न्यूरॉन सेल इज लाइक स्टार. ओके, शेप ऑफ अ स्पर्म सेल इज लाइक टैडपोल. ओके, सेल शेप ऑफ अमीबा, उसका कोई शेप ही नहीं होता है. ओके, सेल शेप ऑफ एग और ओवम, उसका जो शेप होता है वो एक फुटबॉल जैसा होता है. सो देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स आर देयर. नाउ इफ यू टॉक अबाउट डिफरेंट साइज, हाँ, इसमें भी बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है. जैसे कि दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल होता है, देयर इज काइंड ऑफ बैक्टीरिया, दे आर नेम्ड एज माइकोप्लाज्मा और PPLO, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. दे आर द स्मॉलेस्ट सेल on this earth. Largest cell by volume is the egg of ostrich. The longest cell in our body is one kind of neuron, that is motor neuron cell. Largest cell in human body is our egg cell or ovum cell. Longest cell in plant is a kind of fiber of rami plant. So here we can see different size variation of cells.